So it has started. Okay. Okay, so it is live. So hello students, good evening. Welcome to सक्सेस स्टेशन. सो आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था. ओके, दैट इज हाउ टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोस आर नोन टू अस. ओके, अंडरस्टूड? जो चलिए स्टार्ट करें. सो एक बार बता दीजिए आप लोग दैट वॉइस क्लियर है या नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सो दैट आई कैन स्टार्ट. ओके, एक बार आप लोग बता दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. Okay, voice is coming. Okay, so let's start. So this is question number 28. Okay, so this is question number 28. So go for it students. ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 27 तक सॉल्व किया था. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है. गिव इट अ ट्राई. ओके, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है आपका, a quadratic polynomial is given, that is 2x square minus 3x plus 1. Okay, and that quadratic polynomial has zeros alpha and beta, and now we have to form what? Now we have to form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta. Clear? Understood? So last class में ये concept मैंने discuss किया था आप लोगों के साथ, that how we can form a quadratic polynomial when its zeros are known to us. Clear? Understood? So try कीजिए इस क्वेश्चन को. 2 मिनट सिर्फ, ओनली जस्ट 2 मिनट्स. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ओके, ट्राई कीजिए एंड आफ्टर दैट मैं डिस्कस करता हूं. ओके, ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी. डोंट टेक मच टाइम इन दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है. ओके, फॉर्म करना है. यहाँ पे देखिए अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, जस्ट वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव टू फाइंड, and the zeros of that quadratic polynomial is what? That is 3 alpha and 3 beta. And again this is the previous year question from the year 2014. Go for it. Waiting for your answers. Okay, go for it students. Waiting for your answers. ओके, इस चीज पे फोकस करिए जो 3 अल्फा और 3 बीटा मेंशन है. ओके, इस पॉइंट पे आप फोकस कीजिए. ये पॉइंट क्लियर हो गया, देन आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे. ओके, okay, so one answer has been given. It's 2x square minus 7x plus 9. Okay, let me check. I need more answers. I have received just one answer. Shivam, check your calculation. I think there is some mistake. Just check once. एक बार चेक कर लीजिए. ओके, कुछ मिस्टेक है शायद. कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, एक बार चेक कर लो. ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो गिवन है. सबसे पहले चलिए उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कंसिडर करते हैं p ऑफ x. ओके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया p ऑफ x, दैट इज 2x स्क्वायर minus 3x plus 1. Clear? Now this quadratic polynomial has two zeros and the zeros are alpha and beta. So this is actually given. So alpha and beta are the
zeros, okay, alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x, okay, clear। now यहाँ पे देखिए हमें जो quadratic polynomial चाहिए ना, उस quadratic polynomial का zeros जो है they are 3 alpha and 3 beta, so it means that first we have to find out the value of 3 alpha and 3 beta, and after that we can form the polynomial, okay। so 3 alpha and 3 beta का value find out करने के लिए हमें alpha and beta का भी तो value चाहिए, clear। so alpha and beta are what? These are the zeros of the quadratic polynomial p of x, it means first we have to find out the zeros of the quadratic polynomial p of x, clear। so we will write that for finding the zeros, for finding the zeros, for finding the zeros let px is equal to 0, okay। बहुत सिंपल है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है तो सिंपली उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं, अंडरस्टूड। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके, इसे अभी हम लोग इक्वेट कर देते हैं। So now as this is a quadratic trinomial, so we will use the mid-term splitting method to factorize this, okay। so now what is the first step? देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2 and constant term क्या है, that is 1, so 2 into 1 आपका 2 हो गया, clear। so now this 2 can be written as 2 into 1, okay। so now what is the next step? यहाँ देखिए x के कोफिशिएंट को आप देखो, x का कोफिशिएंट है आपका -3, so इस x के कोफिशिएंट को दैट इज -3 उसे हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, और उसे ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका हेल्प लेंगे, यहाँ देखिए इस 2 into 1 का हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। सो नाउ दिस -3 कैन बी रिटन एज -2 -1, क्लियर। नाउ अभी हम लोग प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ देखिए पहला नंबर में -2 सिलेक्ट किया और दूसरा नंबर -1, सो -2 into -1 क्या होता है, दिस इज 2, और ये 2 जो है इस नंबर के साथ मैच कर रहा है, इट मीन्स ये जो हमने -3 को ब्रेक किया है ये टोटली करेक्ट है, क्लियर। सो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 2x में हम 2x को कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा हमारा x माइनस 1, ओके। नाउ माइनस x प्लस 1 में हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, सो यहां बचेगा हमारा x माइनस 1, क्लियर, understood। so x minus 1, x minus 1, so again we will take x minus 1 as common, so x minus 1 को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा हमारा 2x minus 1, clear, is equal to 0। so as you can see ये आपका x minus 1 पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और 2x minus 1 ये आपका दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्लियर। सो एक बार हम लोग क्या करेंगे, x minus 1 को लेफ्ट में रखेंगे और सेकेंड टाइम हम लोग 2x minus 1 को लेफ्ट में रखेंगे, क्लियर। सो x minus 1 को आप जब लेफ्ट में रखोगे तो ये हो जाएगा x minus 1 is equal to 0, so this implies x equal to 1, clear। now 2x minus 1 इसे आप अगर लेफ्ट में रखोगे तो ये हो जाएगा 2x minus 1 is equal to 0, so ये होगा 2x is equal to 1, so x equal to what, it is 1 by 2, okay। so we have found out the two zeros of the quadratic polynomial p of x, okay, we have found out the two zeros of the quadratic polynomial p of x, it means हमने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो इसे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं दैट अल्फा इज व्हाट, अल्फा हो गया आपका 1, ओके। ये जो फर्स्ट जीरो है ना इसे हम लोगों ने अल्फा कंसिडर किया था, कंसिडर नहीं किया था तो क्वेश्चन में गिवन ही था, एंड बीटा दैट वाज द सेकंड जीरो एंड उसका वैल्यू आपका 1/2, ओके। सो यहाँ पे देखिए अल्फा एंड बीटा का वैल्यू अगर आ गया है देन आप यहाँ पे 3 अल्फा एंड 3 बीटा का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर, अंडरस्टूड। सो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां कंसिडर करते हैं दैट लेट a एंड b, ओके, बी द जीरोज, लेट a एंड b बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x। नाउ यहां पे f of x क्या है, यहां देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है ना, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने यहां पे f of x कंसिडर कर लिया, क्लियर। सो a and b are the two zeros, clear। so a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 बीटा मेंशन है ना, 3 अल्फा मेंशन है ना, तो इसे मैंने a को 3 अल्फा कंसिडर कर लिया, क्लियर, अंडरस्टूड। और ये सेकंड जीरो को मैंने b कंसिडर किया और b का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 बीटा, ओके। सो b का वैल्यू मैंने 3 into बीटा कंसिडर कर लिया, क्लियर। सो a is equal to 3
इंटू अल्फा, सो अल्फा का वैल्यू आपका 1 है, सो 3 इंटू 1। सिमिलरली बी इज इक्वल टू 3 इंटू बीटा, एंड बीटा का वैल्यू आपका क्या है 1/2। क्लियर? सो ए का वैल्यू आपका आ गया 3 एंड बी का वैल्यू आ गया आपका 3/2। सो दिस ए एंड बी आर व्हाट? दिस ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अंडरस्टूड? सो शिवम, आंसर इज 2x square minus 9x plus 9। ओके, कोई बात नहीं, डिस्कस कर रहा हूं मैं। चलिए, सो नाउ व्हाट आई विल राइट हियर, दैट a quadratic polynomial is given by, okay, we have to write that also. So the quadratic polynomial, okay, the quadratic polynomial is given by, the quadratic polynomial is given by, ओके, इट इज गिवन बाय, यहां देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने f ऑफ x कंसीडर किया, सो इट इज गिवन बाय k। k इज व्हाट? इट इज अ कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस, यहां पे अभी तक आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके लिखा होगा, अल्फा प्लस बीटा इनटू x। ओके, बट अल्फा प्लस बीटा हम लोग कब लिखते थे? व्हेन द जीरोस वाज अल्फा एंड बीटा। बट यहां पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस को हम लोगों ने a एंड b कंसीडर किया, सो वी विल राइट दैट a प्लस b मतलब सम ऑफ जीरोस, ओके, x, clear, understood, and plus a into b and product of zeros, clear, understood, clear। so यहां पे हमें पहले a plus b का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, a into b का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, एंड उस वैल्यू को यहां पे हमें पुट करना होगा। क्लियर? यहां पे भी इसे हम पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, चलिए इसे पुट करते हैं। so f of x is equal to k into x square minus a plus b, okay, so what is a? As you can see, a is 3 and b is 3/2, okay, 3 plus 3/2, clear, ये x हो गया, plus product is what? 3 into 3/2, understood? so k into its x square minus LCM लेते हैं, ये हो गया आपका 2, ये 6 plus 3, clear, x 9/2, okay, it's 9/2, clear। so ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस 9/2। so as you can see the coefficient of x is minus 9/2, that is a fraction। और यहाँ इस कांस्टेंट टर्म को देखिए, ये भी आपका एक फ्रैक्शन है, क्लियर, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर को देखिए, दैट इज 1, माइनस 9 का डिनोमिनेटर क्या है? ये आपका 2 है, और यहाँ 9 का डिनोमिनेटर 2 है, सो एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम हो जाएगा 2, ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, क्लियर। सो इस 2 को हम लोग बाहर लेके आ जाते हैं, सो ये होगा आपका k/2, क्लियर, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, okay। so in this question, as we have to find what? we have to find out one quadratic polynomial, okay, we have to find out one quadratic polynomial, so we will consider k is equal to 2, okay, because k is equal to 2 कंसिडर करने से क्या होगा? न्यूमरेटर में भी 2 और ये डिनोमिनेटर में भी 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा। सो व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक polynomial is a quadratic polynomial is what? 2x square minus 9x plus 9, okay, and यहां पे हम लोगों ने k का वैल्यू 2 कंसिडर किया, okay, understood। so students, is it clear? क्वेश्चन क्लियर है? इसका सॉल्यूशन 2x square minus 9x plus 9, okay, yes Shivam, now your answer is correct, ये दूसरा वाला करेक्ट है। हेलो श्लोक, हेलो, yes Ayush, you are late, no worries, okay। so the next question is on your screen. if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 4x plus 3, so find out the polynomial whose zeros are 1 plus beta by alpha, ये आपका है 1 plus beta by alpha, and ये आपका है 1 plus alpha by beta, clear।
So we have to find out the polynomial whose zeros are 1 plus beta by alpha and 1 plus alpha by beta. Clear? Solve it. Okay, again a very simple question. लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहां पे जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना था, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस थे वो क्या थे, 3 अल्फा एंड 3 बीटा। एंड यहाँ पे जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, 1 प्लस बीटा बाई अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। क्लियर? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। ओके, तो सॉल्व कीजिए। 1 plus beta by alpha and 1 plus alpha by beta. Okay. Don't take too much time. Okay. Okay. Answers जल्दी जल्दी दीजिए. Don't take much time. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. तो अगेन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अंडरस्टूड है, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोस निकालने होंगे। ओके, अंडरस्टूड? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले आपको जीरोस निकालने होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन क्या है, देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे पुट कर दोगे आप, एंड from that you will find out the family of the quadratic polynomials. Okay, so यहाँ पे भी आप देखो, सिर्फ एक quadratic polynomial हमें निकालना है। Okay, just one quadratic polynomial you have to find. अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है? Do it fast. Do it fast. ये सब क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। ओके, तो अभी आप लोगों को इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व करने हैं। ओके, सेव योर टाइम फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ओके, और भी अच्छे क्वेश्चन जो आएंगे ना एग्जामिनेशन में, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन के लिए अपने टाइम को बचा के रखना है। ओके, अंडरस्टूड? ये सब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, नो वन हैज गिवन टिल नाउ। ऐसा कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन ही है। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ओके ओके ओके, सो नाउ अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, चलिए। So we will consider the given polynomial as p of x. Clear? That is x square plus 4x plus 3. Okay, and alpha and beta are the zeros. Okay, mentioned है, देखिए, alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 4x plus 3. So alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x. Okay, alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x. Clear? So now first we have to find out the value of alpha and beta, because alpha and beta का वैल्यू निकालने के बाद ही आप 1 plus beta by alpha का वैल्यू and 1 plus alpha by beta का वैल्यू आप निकाल सकते हो। Clear? So first we'll find out the zeros of the quadratic polynomial p of x, that is alpha and beta. So what we'll write that for finding the zeros, okay, we will equate the given polynomial with 0. Okay, so let px is equal to 0. So it's x square plus 4x plus 3 is equal to 0. Clear? So x square के कोफिशिएंट को देखिए, that is 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को देखिए, that is 3. So 1 into 3 क्या होता है? Obviously 3 ही होता है। Clear? So now इस 3 को अभी आप क्या लिख सकते हो? इस 3 को आप 3 into 1 तो लिख ही सकते हो। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? x के कोफिशिएंट को देखिए, दैट इज 4। सो आपको क्या करना है, इस 4 को
दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ओके। एंड फॉर दैट हम किसका हेल्प लेने वाले हैं, देखिए इन दो नंबर्स का, ओके। सो विल राइट 4 एज 3 + 1, ओके। तो चलिए प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज 4 = 3 + 1 तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं, बट प्रोडक्ट को भी चेक करना बनता है, क्लियर। सो यहाँ पे देखिए +3 इंटू यहाँ है +1, सो 3 × 1 तो 3 होता है, और ये 3 देखिए इसके साथ मैच कर रहा है। इट मींस ये जो 4 को हम लोगों ने ब्रेक किया ये टोटली करेक्ट है। सो इट इज x² + 4x विल बी रिटन एज 3x + x + 3 = 0। सो x² + 3x में हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 3, ओके। एंड x + 3 में आप क्या ऑब्वियसली 1 ही कॉमन ले सकते हो ना, और तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। सो इट विल बी रिटन एज x + 3। सो नाउ एज यू कैन सी x + 3 x + 3 ये आपका कॉमन हो गया, x + 3। सो यहाँ आपका क्या बचेगा, x + 1, क्लियर, अंडरस्टूड, x + 1। सो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार x + 3 को लेफ्ट में रखेंगे और एक बार x + 1 को हम लोग लेफ्ट में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, अंडरस्टूड। सो अगर हम x + 3 को लेफ्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 = 0, सो x = -3, ओके। नाउ सेकंड केस में हम लोग x + 1 को लेफ्ट में रखेंगे तो ये होगा x + 1 = 0। सो यहां से फिर x का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे देखिए x के दो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किए। सो ये दो वैल्यूज हैं क्या, दीज आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो इट मींस ये आपका अल्फा एंड बीटा का वैल्यू है, ओके। ये आपका अल्फा एंड बीटा का वैल्यू है, अंडरस्टूड। So alpha is equal to -3 and beta is equal to -1. Okay, alpha is equal to -3 and beta is equal to -1. So now again what we will consider, that let a and b be the zeros of the quadratic polynomial f of x. Okay, और ये f of x क्या है, f of x वो quadratic polynomial है जो अभी हम लोग find out करने वाले हैं, okay। So we will write that let me change the color, let a and b, okay, let a and b be the zeros, okay, let a and b be the zeros of the quadratic polynomial, okay, let a and b be the zeros of the quadratic polynomial f of x, clear। so a आपका पहला जीरो है, क्लियर, और a का वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए 1 + बीटा बाई अल्फा, बिकॉज मेंशन क्या था, that find the quadratic polynomial whose zeros are 1 + बीटा बाई अल्फा। तो जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उस पॉलिनोमियल के दो जीरोस को हम लोगों ने a एंड b कंसीडर किया है। सो ये जो मेंशन्ड है 1 + बीटा बाई अल्फा, ये आपका a का वैल्यू हो गया 1 + बीटा बाई अल्फा, क्लियर। एंड ये b का वैल्यू क्या है, दैट इज 1 + अल्फा बाई बीटा, ओके, 1 + अल्फा बाई बीटा, ओके, अंडरस्टूड। सो ना अभी a का वैल्यू पे निकाल लेते हैं हम लोग, 1 + बीटा का वैल्यू क्या है, देखिए -1 है, एंड अल्फा का वैल्यू क्या है, देखिए -3 है। सो a का वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली। सो ये हो जाएगा 1 + 1/3, सो 3 + 1/3, सो इट इज 4/3। सो a का वैल्यू देखिए 4/3 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b ऑल्सो। सो b इज 1 + अल्फा बाई बीटा, सो अल्फा है आपका -3 एंड बीटा है आपका -1। सो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एंड b का वैल्यू क्या आ गया, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, क्लियर। सो a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू आया हमारा 4/3 एंड b का वैल्यू क्या आया, b का वैल्यू लेट मी चेक, b का वैल्यू हम लोगों ने अभी 4 फाइंड आउट किया, क्लियर। b का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट 4 फाइंड आउट कर लिया, क्लियर। सो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टू जीरोस, क्लियर, बिकॉज सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्लियर, बिकॉज जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, और वी कैन से व्हाट इज द फैमिली ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दैट इज गिवन बाय k into x² minus sum of the zeros into x plus product of the zeros, clear, understood। so इसीलिए हम लोग यहाँ पे a + b फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है क्या, ये आपका सम ऑफ द जीरोस है, ओके, ये आपका सम ऑफ द जीरोस है। सो a + b इज इक्वल टू 4/3 + 4। सो एलसीएम लेंगे, ये होगा 3 4, ये आपका 12, सो 12 + 4 16/3। ये सम ऑफ द जीरोस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नाउ विल फाइंड आउट a into b।
that is product of zeros. Okay, that is product of zeros. Clear? So product of zeros means a into b is equal to what? 4 by 3 into 4. So that is 16 by 3. So यहाँ देखिए sum of the zeros भी 16 by 3 आया, product of the zeros भी 16 by 3 आया. Clear? So now what we will write? So the quadratic polynomial is given by, so the quadratic polynomial, okay, so the quadratic polynomial is given by, so the quadratic polynomial is given by f of x. हम लोगों ने f of x कंसिडर किया था ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये मेंशन करना होगा f of x. So it is given by k into x square minus a plus b, because the two zeros we have considered it as a and b. So minus a plus b into x plus a into b. Understood? So ये होगा k x स्क्वायर माइनस व्हाट इज a प्लस b. देखिए 16 by 3 हम लोगों ने फाइंड आउट किया था x प्लस व्हाट इज a into b, दैट इज ऑल्सो 16 by 3. क्लियर? सो k x स्क्वायर माइनस 16 by 3 into x, ओके, प्लस 16 by 3. सो यहां पे आप देखो x के कोफिशिएंट को देखिए, दैट इज माइनस 16 by 3, सो इट इज अ फ्रैक्शन. और यहाँ पे इस कांस्टेंट को भी देखिए, ये भी 16 by 3 है, ये भी एक फ्रैक्शन है. सो इसे अभी हम लोग क्या, इसके कोफिशिएंट को, दैट इज x के कोफिशिएंट को, और ये कांस्टेंट टर्म को अभी हमें एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. किसका एलसीएम? 1, 3 और 3 का एलसीएम. ओके ओके, 1, 3 एंड 3 का एलसीएम. सो ऑल द पोर्शन इज विजिबल. यस, इट इज विजिबल. क्लियर? सो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ये आपका माइनस 16x और ये प्लस 16. क्लियर? तो इस 3 को हम लोग बाहर लेके चले जाते हैं. सो ये हो जाएगा k by 3, सो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस वाज द fx पॉलिनोमियल. बट यहां पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो अगेन यहां पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? यहां पे अभी हम लोग यहां देखिए k को देखिए, है ना. k को अगर हम लोग 3 कंसिडर करते हैं, देन k के जगह पे 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखिए एक 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल. सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16. सो व्हाट विल राइट? सो अ quadratic, so a quadratic polynomial is, so a quadratic polynomial is, so a quadratic polynomial is 3x square माइनस 16x प्लस 16. एंड यहां पे हम लोगों ने k का वैल्यू क्या कंसिडर किया था? दैट इज 3. तो इसे हम लोग मेंशन कर देते हैं, दैट k इज इक्वल टू 3. अंडरस्टूड? सो दिस इज द आंसर. सो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16. ओके, सो शिवम एंड आयुष, वेल डन, योर आंसर वाज करेक्ट. ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. ओके, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x, that is equal to x square minus 1, so find a quadratic polynomial. Again यहाँ पे देखिए a quadratic polynomial, मतलब एक ही quadratic polynomial हमें find out करना है. And the zeros of that quadratic polynomial is what? That is 2 alpha by beta and 2 beta by alpha. Clear? Again देखिए फिर से पिछला कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है. ओके, अंडरस्टूड? एंड अगेन दिस इज आल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये आपका क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, दैट इज इन द ईयर 2016. ओके, सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, गो फॉर इट. ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए ना, दैट इज 28 एंड 29, all those questions, both the questions were same to same. And okay, and this question is also directly related to the previous two questions. okay, सिंपल है, सॉल्व करना है आपको, सिर्फ जीरोस फाइंड आउट करना है. गो फॉर इट स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. शिवम आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना. आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो.
ओके, अब है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ओके, सो फास्ट, वेरी नाइस। ओके, डिस्कस करते हैं फिर पता चलेगा। टू अल्फा बाई बीटा एंड टू बीटा बाई अल्फा। अब है जस्ट एक बार आप कैलकुलेशन पर चेक कर लो, जस्ट चेक योर कैलकुलेशन वंस। अब है वंस, जस्ट चेक योर कैलकुलेशन वंस। सो शिवम, यू हैव रिटन एक्स स्क्वायर 4x। सो 4x का साइन क्या है? माइनस प्लस, यू हैव नॉट मेंशन्ड दैट। It's x square plus 4x or it's x square minus 4x. You have to mention that. Okay. Okay, one more minute. एक मिनट और and after that discuss करते हैं। fx पॉलिनोमियल एक गिवन है एंड दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, सो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। सो अगेन यहाँ पे देखिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले ही कंसिडर कर लिया गया है, मतलब क्वेश्चन में ही मेंशन है दैट इट इज f ऑफ x। सो वी विल राइट इट f of x is equal to x square minus 1, x square minus 1, x square minus 1, clear? And alpha and beta are the zeros, alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x. Okay, understood? So now first what we have to do, we will find out the zeros of this polynomial f of x. So what we will write that for finding the zeros, let f of x is equal to 0. Clear? So given polynomial that is x square minus 1 को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। So now यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 मेंशन है। So this 1 can be written as 1 का स्क्वायर। ओके, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। क्लियर? सो इट विल बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b। सो इट मीन्स यू विल राइट इट एज x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। सो अगेन एक बार आप क्या करोगे, x प्लस 1 को एक बार आप लेफ्ट में रखो और एक बार x माइनस 1 को लेफ्ट में रखो। सो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू व्हाट? इट इज माइनस 1। क्लियर? So now x minus 1 is equal to 0. So x is equal to what? It is plus 1. Clear? So again x के दो वैल्यूज यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किए, that is 1 and minus 1. So it means अल्फा का वैल्यू आपका minus 1 है and बीटा का वैल्यू आपका plus 1 है। Clear? Understood? So fx पॉलिनोमियल के हम लोगों ने दोनों ही जीरोस को फाइंड आउट कर लिया। So now what we will write that let a and b, okay, let a and b be the zeros. Okay, let a and b be the zeros of the polynomial p of x. Okay, अभी जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उसे हम लोगों ने p of x कंसिडर कर लिया। क्लियर? सो नाउ a इज व्हाट? a का वैल्यू क्या है? यहां देखिए मेंशन्ड है ना, the quadratic polynomial that we have to find. Okay, and the zeros of that quadratic polynomial is what? It is 2 alpha by beta. Clear? So इस a का वैल्यू क्या है? 2 alpha by beta. Clear? And इस b का वैल्यू क्या है? 2 beta by alpha. Clear? So a is equal to what? Alpha and beta का वैल्यू तो हमें पता है ना। So अल्फा के जगह पे माइनस 1 पुट करते हैं, बीटा के जगह पे 1 पुट करते हैं। b में भी वही चीज करेंगे, 2 इंटू बीटा के जगह 1 पुट करेंगे, अल्फा के जगह माइनस 1 पुट करेंगे। सो a का वैल्यू हो जाएगा आपका -2 एंड b का वैल्यू भी -2 हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज इस -1 को अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ऑब्वियसली वो -2 ही हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस and the product of the zeros. Okay, because whenever we find out a quadratic polynomial, then the sum of the zeros and the product of the zeros is really important. Okay,
सो सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं, दैट इज a प्लस b, दैट इज -2, दैट इज -4, क्लियर, and a into b, that is -2 into -2, that is +4, clear. So sum of the zeros is -4 and product of the zeros is +4. So now what we will write, that the quadratic polynomial is given by okay, it is given by p of x हमने कंसिडर किया था ना, so it is p of x equal to k into x square minus a plus b, okay, a plus b is the sum of the zeros, x plus a into b, okay, understood. So x square minus what is a plus b, that is -4, okay, so -4 यहां पुट करेंगे, x plus a into b, it is +4, सो ये हो गया आपका k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ओके। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 4 है और ये कांस्टेंट टर्म 4 है, मतलब ये एक इंटीजर है, क्लियर, ये एक फ्रैक्शन तो है नहीं, इट मींस यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे देखिए k का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, विल टेक सिंपली द वैल्यू ऑफ k एज इक्वल टू 1, क्लियर। सो व्हाट विल राइट, अ quadratic polynomial is given by, okay, a quadratic polynomial is given by, it is given by, सॉरी यहाँ given by तो लिखना नहीं है हमें ना, given by तो ऑलरेडी हमने लिखा ना, a quadratic polynomial is ना सिंपली लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड यहाँ पे हम लोगों ने k का वैल्यू आपका 1 कंसिडर किया, ओके, अंडरस्टूड। सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, okay, so well done Ayush, Ayush 2 times, okay, well done Shivam, okay, nice। अब है आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन में, चेक कर लेना। सो वेल डन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, गो फॉर इट। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 24 and beta minus alpha is equal to it, okay, so we have to find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros, okay, understood। मतलब यहां पे जो भी quadratic polynomial हमें फाइंड आउट करना है, उस quadratic polynomial के जो zeros है ना, they are alpha and beta, clear, understood। एंड यहां पे देखिए, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ दो इक्वेशंस मेंशन्ड है, ओके, सो आप इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, ओके। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होगा ऑफ द चैप्टर, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। इन द कमिंग क्लासेस वी विल आल्सो डिस्कस दैट चैप्टर, बट अभी तो आपको यूज करना होगा, ओके। उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में, बट अभी थोड़ा आप ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, मैं बताऊंगा फिर कैसे सॉल्व करना है, पहले आप इसे ट्राई करो, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, ओके। सो पहले ट्राई कीजिए। बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 24 एंड बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। यहां पे भी हमें वही फाइंड आउट करना है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जस्ट वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव टू फाइंड, ओके। सो इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24, ओके, 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 लेट द अदर स्टूडेंट्स आल्सो आंसर दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ओके, इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 120, ओके, वेरी गुड, अब है नाइस, वी विल डिस्कस। अभी तक 2 आंसर आ चुके हैं, ओके, एंड द रेस्ट स्टूडेंट्स आप लोग भी आंसर बताओ जल्दी, ओके, डोंट टेक मच टाइम, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना होगा, बिकॉज यू हैव टू सेव योर टाइम फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ओके।
सेव योर टाइम फॉर दैट। 1 more minute, 1 minute और है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। Do it fast, do it fast. Okay, Ayush, x square minus 24x plus 120. Okay, nice, nice. I need one more answer. Okay, x square minus 24x plus 120. Okay, so let's see the majority wins, और देखते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। 3 लोगों के आंसर सेम आए हैं एंड शिवम का आंसर डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। So now in this question it is given that if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, okay, it is mentioned, clear? एंड यहाँ पे और भी देखिए मेंशन है, मैंने क्या बोला था, दिस इज एक्चुअली अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो इट इज गिवन बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 24। ओके, तो इसे अभी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं, और दूसरा इक्वेशन देखिए आपका क्या मेंशन है, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 8। ओके, सो नाउ यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ प्लस अल्फा मेंशन है और यहाँ माइनस अल्फा मेंशन है। सो यहाँ पे हम लोग किस मेथड को यूज करेंगे, वी विल यूज द एलिमिनेशन मेथड। ओके, नाउ डोंट वरी, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है दैट आपने तो अभी तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बताया नहीं है और आप उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हो। ओके, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट का ये यूज है, इसीलिए मैं सिंपली बता रहा हूँ, बट मैं उस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। ओके, उसके लिए आपको चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। सो एलिमिनेशन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल को यहां से हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, तो अगर आप एक वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट कर दोगे ना, देन वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में। ओके, और वो तो बहुत ही सिंपल होता है सॉल्व करना। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हम लोग ऐड करेंगे ना, तो प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बीटा ही बचेगा। सो बीटा अगर बचेगा देन आप बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, एंड किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप बीटा का वैल्यू पुट करोगे देन वहां से आप अल्फा का वैल्यू भी निकाल लोगे। सो अगर आपको अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता चल गया, देन सम ऑफ द जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है, अंडरस्टूड, और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर? सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, okay, adding equation 1 and 2। सो अगर आप ऐड करोगे इक्वेशन 1 and 2 को, तो यहां देखिए प्लस अल्फा माइनस अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा हमारे पास, 2 बीटा प्लस बीटा, दैट इज 2 बीटा। क्लियर? एंड 24 प्लस 8 यहां आपका बचेगा। सो 2 बीटा इज इक्वल टू 24 प्लस 8, दैट इज 32, एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 32/2। सो बीटा इज इक्वल टू 16। ओके, तो देखिए बीटा का वैल्यू 16 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ बीटा इन एनी ऑफ द 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, कहीं पे भी आप बीटा का वैल्यू पुट करोगे और अल्फा का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल लेंगे। क्लियर? सो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 24 है। ओके, सो बीटा के जगह पे हम लोग 16 पुट करते हैं, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 24। सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इट्स 24 माइनस 16। क्लियर? सो अल्फा का वैल्यू क्या है, देखिए 24 माइनस 16 आपका 8 होता है। सो अल्फा इज इक्वल टू 8 एंड बीटा इज इक्वल टू 16। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल फाइंड, नाउ वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सो इट इज 8 प्लस 16, that is 24, okay, and it's alpha into beta, so it's 8 into 16, so 8 into 6 is 48, carry 4, it's 128, okay, 16 into 8 is 128. So now what we will write, so the quadratic polynomial, so the quadratic polynomial is given by, so the quadratic polynomial is given by, इट इज गिवन बाय व्हाट। ओके, सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने अभी तक तो कुछ कंसीडर नहीं किया, तो चलिए इसे p ऑफ x ही कंसीडर कर लेते हैं। सो इट इज गिवन बाय p ऑफ x, k इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा इनटू बीटा। अंडरस्टूड? सो k इनटू x स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 24x प्लस अल्फा इनटू बीटा, दैट इज 128। सो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट -24 है और यहाँ कांस्टेंट 128 है। इट मींस ये एक
इंटीजर है, मतलब यहाँ पे अभी हम लोग को एलसीएम वेलसीएम लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था ना, देन ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 एंड यहाँ पे हमने k का वैल्यू 1 कंसीडर किया, तो ये हमें वहां मेंशन कर देना होगा। क्लियर, अंडरस्टूड? सो लेट मी राइट, सो अ quadratic polynomial is x square minus 24x plus 128। क्लियर, एंड यहां पे हम लोगों ने k का वैल्यू 1 कंसिडर किया था। ओके, सो आंसर्स किसका सा करेक्ट था? आयुष, ओके, अब है, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स। शिवम, चेक योर कैलकुलेशन, कुछ मिस्टेक होगा। ओके, सो वेल डन स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 is on your screen. Go for it. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 7x plus 2, so find a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. Clear? Again इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, so solve this also. Very simple question. क्वेश्चन नंबर 32 है ये आपका। यहां पे देखिए, अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एंड जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है ना, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस क्या है? 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। ओके, अंडरस्टूड? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको फोकस करना है, ये 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा पे। 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। और अल्फा एंड बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? मेंशन है, देखिए, अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो सिंपली क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। पहला जीरो को अल्फा मानेंगे, दूसरा जीरो को बीटा मानेंगे। और अल्फा एंड बीटा अगर पता चल गया तब तो बहुत ही सिंपल है ना, 1 बाई अल्फा भी पता चल जाएगा, 1 बाई बीटा भी पता चल जाएगा। क्लियर? और 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा तो पता चल गया, बहुत ही सिंपल। ठीक है, सो अगर 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा आप लोगों ने निकाला है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बहुत ही इजीली आप लोग निकाल सकते हो। ओके, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया दैट हाउ वी कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोस आर नोन टू अस। क्लियर? सो वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 32 है ये। ओके, ओके, आई नीड द आंसर्स। ओके, अब है, इट्स k is equal to 2। ओके, नाइस, वेल डन। k to x square minus 7x, अब है, राइट इट क्लियरली, इट्स minus 7x into 6। what is that? what is the constant value here? Okay, it's 2x square minus 7x plus 6। okay, good। सो अब है, whenever you are writing the final quadratic polynomial, then वहां पे आपको k नहीं लिखना है, बिकॉज यहां पे आपने मेंशन कर दिया है that k is equal to 2। ओके, सिर्फ ये आपको मेंशन करना है। फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप जब लिखोगे ना, देन आपको सिंपली वहां पे ये मेंशन कर देना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, एंड राइट में सिर्फ ये मेंशन कर देना दैट आपने k का वैल्यू क्या कंसीडर किया था। ओके, k इनटू वहां से नहीं रहना चाहिए, जो आपने k यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई किया ना, उस k को आपको रिमूव करना होगा। क्लियर? बिकॉज उस k को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने k का वैल्यू 2 कंसीडर किया है। ओके, अंडरस्टूड? तो इसीलिए k को वहां पे लिखने का जरूरत नहीं।
अंडरस्टूड अब है व्हाट आई वाज सेइंग? ओके, इट्स 2x square minus 7x plus 6. Okay, I need more answers. Only 2 students have given till now. Okay, Abhay, good. Okay, so चलिए डिस्कस करते हैं. So what is mentioned that if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 7x plus 2. Okay? हाँ आयुष, यस ट्रिग्नोमेट्री का क्लास होने वाला था. यस, कुणाल सर लेने वाले थे बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास नहीं होने पाया. It will be rescheduled. Okay, that class will be rescheduled. Don't worry about that. Okay, it's x square minus 7x plus 3. Okay, okay आयुष, okay. चलिए अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं. px, it's 6x square minus 7x plus 2. okay, 6x square minus 7x plus 2, इसे हम लोगों ने p of x कंसिडर कर लिया. एंड मेंशन क्या है दैट अल्फा एंड बीटा are the zeros. Okay, alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x. Okay, alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x. Clear? So now what we have to find? First we'll find out the zeros. So what we'll write that for finding out the zeros. Okay, for finding out the zeros, let p of x is equal to 0. Let p of x equal to 0. So simply हम लोग इस quadratic polynomial को 0 के साथ इक्वेट करेंगे. So ये हो जाएगा 6x square minus 7x plus 2 is equal to 0. Okay, understood? So now as this is a quadratic trinomial, तो इसे पहले हमें factorize करना होगा. So first step क्या है? x square का कोफिशिएंट आपका 6 और constant टर्म आपका 2. So 6 into 2 आपका होता है 12. So इस 12 को फिर हम लोग ब्रेक करते हैं. So इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 3. Okay, clear? Now x के कोफिशिएंट को देखिए, दैट इज -7. सो -7 को हम लोग क्या करेंगे? दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और उसे ब्रेक करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे? यहाँ पे देखिए जो नंबर्स है ना, इसका हम लोग हेल्प लेंगे. सो 2 into 2 होता है 4 एंड 4 में आप 3 जब ऐड करोगे ना तो आपको 7 तो मिल जाएगा. क्लियर? बट यहाँ पे हमें -7 चाहिए. सो विल राइट इट एज -4 -3. सो -4 -3 का वैल्यू -7 होता है. क्लियर? सो यहाँ पे अभी हम लोग प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं. -4 एंड -3 का प्रोडक्ट. सो ये होता है आपका 12 एंड 12 देखिए यहाँ पे इसके साथ मैच कर रहा है. क्लियर? सो इट मींस ये जो -7 को हम लोगों ने ब्रेक किया है ना -4 + 3 में, -4 -3 में, सॉरी, ये आपका टोटली करेक्ट है. सो -7x को हम लोग क्या लिखेंगे? -4x -3x + 2. क्लियर? सो नाउ 6x square -4x में हम क्या कॉमन लेंगे? 2x. So it will be 3x minus 2. क्लियर? सो -3x plus 2 में हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3x minus 2. सो यहाँ देखिए 3x minus 2, 3x minus 2. सो 3x minus 2 हो जाएगा आपका कॉमन और यहाँ बचेगा 2x minus 1. क्लियर? सो नाउ अगेन 3x minus 2 को एक बार लेफ्ट में रखेंगे हम लोग और सेकेंड टाइम हम लोग 2x minus 1 को लेफ्ट में रखेंगे. सो 3x minus 2 को जब भी हम लेफ्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x minus 2 is equal to 0. So 3x is equal to 2. So this implies x equal to 2/3. Okay, understood? So let me rub this portion first. So now अभी आप जब 2x minus 1 को लेफ्ट में रखोगे तो ये होगा आपका 2x minus 1 is equal to 0. So 2x is equal to 1. So x equal to 1/2. So x के दो वैल्यूज यहाँ पे आ गए ना, 2/3 and 1/2. So these two are what? These two are the zeros of this quadratic polynomial p of x. So ये पहला वैल्यू आपका क्या हो गया? ये आपका अल्फा हो गया. So अल्फा का वैल्यू आपका 2/3 एंड बीटा का वैल्यू आपका क्या हो गया? दैट इज 1/2. क्लियर? सो नाउ हमें जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ना तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दैट let a and b be the two zeros of the quadratic polynomial f of x. Okay, let a and b
be the two zeros, that a and b be the two zeros of the quadratic polynomial f of x ना, f of x मैंने बोला ना अभी, यस ओके। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है ना, उसे हम लोगों ने f of x कंसीडर कर लिया। क्लियर? सो a इज द फर्स्ट जीरो, सो इसका वैल्यू क्या है आपका 1 by अल्फा, एंड b इज द सेकंड जीरो, एंड इसका वैल्यू क्या है आपका 1 by बीटा। क्लियर? सो a इज इक्वल टू व्हाट 1 by अल्फा, एंड अल्फा का वैल्यू आपका 2 by 3 है। क्लियर? एंड b इज इक्वल टू व्हाट 1 by बीटा, तो बीटा का वैल्यू आपका 1 by 2 है। ओके, अंडरस्टूड? सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 by 2, एंड b का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा सिंपली। सो a दैट इज 3 by 2 एंड b दैट इज इक्वल टू 2। मतलब यहां पे हम लोगों ने जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ना, दैट इज f of x, उस fx पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो पहला जीरो आपका 3 by 2 है, एंड दूसरा जीरो आपका 2 है। क्लियर? सो नाउ वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो a प्लस b दैट इज सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं। सो a का वैल्यू आपका 2 by 3 था, एंड b का वैल्यू 2 था। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 3 by 2 एंड 2, यस। सो ऐड करते हैं, 2 हो गया आपका 3 4, सो इट्स 7 by 2। ओके, इट्स 7 by 2। ओके, अभी प्रोडक्ट निकालते हैं a इंटू बी, दैट इज 3 by 2 इंटू 2। सो 2 एंड 2 कैंसल, ये आपका 3 बचा। सो नाउ यहां पे देखिए हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड द सम ऑफ द जीरोस को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो नाउ व्हाट वी विल राइट, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, so the quadratic polynomial is given by f of x कंसिडर किया था हम लोगों ने ना, यस f of x, so it is given by k into x square minus a plus b। okay, a plus b is the sum of the zeros x plus a into b। clear? so k into x square minus what is a plus b, that is 7 by 2 into x, what is a into b, that is 3। so as you can see here, यहां देखिए x के कोफिशिएंट को देखिए, that is -7/2। तो ये एक फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को हमें एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। क्लियर? सो एलसीएम लेते हैं। सो यहां देखिए x स्क्वायर का डिनोमिनेटर 1, 3 का डिनोमिनेटर 1, सो 1 2 एंड 1 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ऑब्वियसली एलसीएम तो 2 ही आएगा। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। क्लियर? सो इस 2 को हम लोग बाहर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका k by 2। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। सो यहां देखिए जो k by 2 के साथ ये जो मेंशन्ड है, ये आपके फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? बट इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। देन उसके लिए अगर आप k का वैल्यू 2 कंसीडर करोगे, तो ये डिनोमिनेटर वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। देन वी विल लेफ्ट विथ व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। सो व्हाट विल राइट, सो a quadratic polynomial, okay, a quadratic polynomial is, it is what, it is 2x square minus 7x plus 6, and यहां पे हम लोगों ने k का वैल्यू 2 कंसिडर किया है। ओके, अंडरस्टूड? so let me check who has given the correct answers. okay, Ayush, very nice. 2x square minus 7x plus 6. okay, very good. Abhay, your answer is correct. okay, well done. I need more answers. okay, आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिए। सो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। सो दिस इज नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट चांसेस तो कुछ भी है ना। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बट अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए आप लोग। सो यहाँ पे फाइंड द पॉलिनोमियल लिखना है, यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए था। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? सो यहाँ मेंशन है, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial such that
4 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 10 and 3 alpha minus 5 beta is equal to minus 7. Then you have to find out the quadratic polynomial, or you can say a quadratic polynomial. यहाँ पे हमें सिर्फ एक polynomial निकालना है. Okay, just one quadratic polynomial you have to find. Clear? Understood? So again यहाँ पे वही concept use होगा. कौन सा concept? The concept of the pair of linear equation in two variables वाला. Okay. That is the elimination method, है ना? Okay, so do it fast. Do it fast. I'm waiting for your answers. Alpha and beta the zeros of the quadratic polynomial. Okay, मतलब हमें जो quadratic polynomial निकालना है ना, उस quadratic polynomial के zeros जो है वो है अल्फा एंड बीटा. क्लियर? अंडरस्टूड है? चलिए सो निकालिए. अल्फा एंड बीटा का वैल्यू अगर आप निकाल लोगे ना, देन जीरोस तो पता है आपको. देन जीरोस अगर आपको पता है तो सम ऑफ द जीरोस भी आप निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल सकते हो. सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर आप लोगों ने निकाल लिया तो फिर बचा ही क्या? Then you will simply write that a quadratic polynomial is given by, and you know what you have to write after that, है ना? आपको obviously पता है उसके बाद आपको क्या लिखना है. Okay, so I'm waiting for your answers. No one has given the answer till now. I need the answers quickly. Four alpha plus 3 beta is equal to 10 and 3 alpha minus 5 beta is equal to minus 7. Okay, इस चीज पे आपको फोकस करना है दैट अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो. ओके, आपने अल्फा एंड बीटा निकाल लिया, फिर तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे सॉल्व करना है, और मुझे बताने का भी जरूरत नहीं है. अभी तो आप लोग बहुत अच्छे सीख ही गए हो. ओके, इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया. देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में पहुंच गए हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 33. ओके, अब है इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ओके, डिस्कस करते हैं. अब है जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट और, आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे हम लोग. सो आई नीड द आंसर्स. ओके आयुष, it's x square minus 3x plus 2 and k is equal to 1. Very nice, very nice. X square minus 3x plus 2. Very good Ayush. So we have two Ayush here, Ayush Raj and Ayush Kumar. Okay, so now it's time. अभी डिस्कस करते हैं. So यहाँ पे देखिए आप लोग, मेंशन्ड है अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो सबसे पहले हमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू तो निकालना होगा ना, बिकॉज अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आप पता कर लोगे, देन आप फिर सम ऑफ द जीरोस निकाल लोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालोगे, और फिर तो ऑब्वियसली आपको पता ही क्या करना है. यू विल राइट आउट द simple expression of a quadratic polynomial, or you can see out the family of the quadratic polynomials is given by k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. ओके, सो यहां पे अगेन देखिए एक इक्वेशन है ना, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा. 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 10. ये आपका इक्वेशन 1 है. एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए 3 अल्फा माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू माइनस 7. सो यहां पे आप देखो, यहां पे बीटा का साइन देखिए, यहां पे प्लस 3 इंटू बीटा है एंड माइनस 5 इंटू बीटा है. सो मतलब यहां पे अगर आप एडिंग करोगे ना, देन यहां पे हम बीटा को रिमूव कर सकते हैं. ओके, एडिंग परफॉर्म करके हम लोग यहां से बीटा को रिमूव कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है, यहां देखिए इसका कोफिशिएंट 3 है और यहां पे इसका कोफिशिएंट 5 है. क्लियर? मतलब प्लस 3 है और यहां माइनस 5 है. देन यहां पे सिंपली आपको क्या करना होगा, ये जो 5 कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे इस 5
को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे जो ये 3 है ना कोफिशिएंट, इस 3 को आपको इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, यहाँ पे ना दोनों सेम टर्म्स आ जाएंगे, मतलब ये जो है ना +3 बीटा था और यहाँ -5 बीटा था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा +15 बीटा और यहाँ आपका हो जाएगा -15 बीटा। सो +15 बीटा एंड -15 बीटा अगर आपको मिला है, then if you will add both these equations then बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? देन अगर बीटा बीटा कैंसिल हो गया ना, देन यहाँ पे आपका सिर्फ अल्फा बचेगा। तो अल्फा का वैल्यू तो आप बहुत ही सिंपली निकाल लोगे ना, और उस अल्फा के वैल्यू को निकालने के बाद उस अल्फा के वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे, देन वहां से आप बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर हुआ आपको दैट व्हाट विल बी द स्टेप्स इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? सो व्हाट आई विल राइट दैट मल्टीप्लाइंग equation 1 with 5, okay, comma multiplying equation 2 with 3, okay, equation 2 with 3, clear? अंडरस्टूड? इक्वेशन 1 में हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 4 into 5 होता है 20 अल्फा, 5 into 3 that is 15 बीटा and 10 into 5 तो आपका 50 होता है। क्लियर? सो नाउ अभी इक्वेशन 2 में अभी हम 3 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 3 into 3 9 हो जाएगा, 9 अल्फा माइनस 5 into 3 तो ये आपका -15 बीटा हो जाएगा। क्लियर? और -7 into 3 that is -21। नाउ अभी आप देखो +15 बीटा -15 बीटा। सो नाउ इफ यू विल ऐड बोथ दिस इक्वेशंस देन आपको क्या मिलेगा, यहां से बीटा तो आपका रिमूव हो जाएगा ना, देन यहां से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? अंडरस्टूड? सो यहां मेंशन कर देते हैं, इसे भी इक्वेशन मानना होगा ना। अच्छा, इसे चलिए 3 और 4 मान ले, क्या नहीं मानोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ओके, ऐसा जरूरी नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं दैट इसको इक्वेशन 3 एंड 4 मानने का ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, चलिए, सो इफ यू विल ऐड बोथ दिस इक्वेशन देन +15 बीटा -15 बीटा तो कैंसिल हो गया। सो 20 अल्फा प्लस 9 अल्फा बचेगा आपका लेफ्ट में, इक्वल टू राइट में क्या बचेगा 50 - 21। क्लियर? सो 20 अल्फा प्लस 9 अल्फा ये आपका 29 अल्फा हो जाएगा एंड 50 - 21 क्या होगा, ये आपका 29 बचेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 29/29। सो अल्फा इज इक्वल टू 1। क्लियर? अल्फा का वैल्यू 1 आ गया हम लोग का। क्लियर? सो नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। क्लियर? सो इट्स 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 10। ये आपका पहला इक्वेशन था, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग अल्फा का वैल्यू 1 पुट करते हैं। सो 4 into 1 प्लस 3 into बीटा इज इक्वल टू 10। सो इट्स 4 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 10। सो 3 बीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट्स 10 - 4। सो 3 बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 10 - 4 आपका 6 हो गया। So beta is equal to what, 6/3। So beta is equal to 6/3 that is 2। So alpha का वैल्यू आपका 1 मिला and beta का वैल्यू आपका 2 मिला। Clear? Understood? Now what you will do, you will find out the sum of the zeros and the product of the zeros। Okay, so find out करते हैं alpha का वैल्यू क्या था, alpha का वैल्यू आपका 1 था and beta का वैल्यू 2 था। So we'll find out sum of the zeros, that is alpha plus beta। Clear? So again let me check, 1 and 2 था ना, 1 + 2 that is equal to 3 and alpha into beta क्या, obviously 1 into 2 ही होगा ना। सो ये भी आपका 3 है। तो अगेन देखिए यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों सेम आ गए। सो व्हाट विल राइट, सो द quadratic polynomial is given by, f of x is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। Clear? So x square minus what was alpha plus beta, यहाँ देखिए 3 है, so it's 3x plus alpha into beta आपका 3। Clear? So as you can see यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट -3, ये भी एक इंटीजर, कांस्टेंट टर्म 3 ये भी एक इंटीजर है, मींस यहाँ पे हमें एलसीएम लेने का जरूरत कुछ भी नहीं है। सो व्हाट विल राइट
that a quadratic polynomial is, okay, a quadratic polynomial is, okay, a quadratic, okay okay, सॉरी 1 into 2 मैंने 3 क्यों लिखा, वेरी सॉरी, बोलिए ये भी मिस्टेक हो जाता है, 1 into 2 तो 2 होता है ना, यस 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 इट विल बी 2, यस अभी मैंने देख लिया, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यस इट विल बी 2, मैंने 1 into 2 3 लिख दिया, वाह चलिए, सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a quadratic polynomial is, it is what, it is x square minus 3x plus 2, so means यहाँ पे हमने k का वैल्यू क्या कंसिडर किया, सिंपली हमने k का वैल्यू 1 कंसिडर कर लिया, ओके अंडरस्टूड, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके सो x square minus 3x plus 2, so well done अभय, आयुष, ओके आयुष राज एंड आयुष कुमार, वेल डन। चलिए सो बढ़े आगे क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सो दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ओके गो फॉर इट। सो यहां पे देखिए एक चेंज किया मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, फॉर्म द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा दैट वी हैव टू फाइंड जस्ट वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट यहां पे मैंने क्या मेंशन किया है और क्वेश्चन में क्या मेंशन है, फॉर्म द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्लियर, एंड बाकी प्रोसेस तो सेम ही होगा, आप लोगों को पता ही है, अगेन एज यू कैन सी this is pair of linear equation in two variables, okay 3 alpha minus 2 beta is equal to 8 and 2 alpha plus 3 beta is equal to 14, clear, so solve it, again you have to use the same concept, do it fast, फैमिली नहीं समझे, ओके आयुष मैंने ये डिस्कस किया था आई थिंक पहले भी, दैट वो जो हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, that is itself the family of quadratic polynomials, ओके ये चीज मैंने पहले बताया है आप लोगों को, सो दैट इज व्हाट फैमिली मेंशन्ड है यहां पे, ओके सो मैं बोलता हूं फोकस कीजिए दैट मैं क्या बोलता हूं, ओके फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बहुत बड़ा चेंज नहीं है ये क्वेश्चन में, ओके बहुत ही छोटा सा चेंज किया गया है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं, क्लियर, बहुत ही छोटा सा चेंज है ये, ओके आई डू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज इन मैथ्स यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली, बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप भूल जाओगे, so do it fast, 3 alpha minus 2 beta is equal to 8 and 2 alpha plus 3 beta is equal to 14, so you can also use the substitution method, okay that you have studied in the chapter, that is pair of linear equation in two variable, clear, you can also use that method, no worries regarding that, so I'm waiting for your answers, okay I need the answers quickly, कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में क्या, नो वन हैज गिवन द आंसर, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम इज देयर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से रिलेट करके आप देखोगे तो बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, तो जैसे प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं इस क्वेश्चन में,
ओके चलिए डिस्कस करते हैं, तब सॉल्व करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलिए सो अगेन यहाँ पे पहला इक्वेशन हम लोग मेंशन करते हैं 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 8। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन आपका है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 14। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। देन अगेन यहाँ पे आप ये साइन देखो माइनस, यहाँ देखो प्लस। सो यहाँ पे अगेन हम लोग बीटा को ही कैंसिल करने वाले हैं बाय एडिंग, बट उसके लिए सबसे पहले हमें दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम करना होगा। ओके क्लियर। देन यहाँ पे आप देखो पहले इक्वेशन में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई करोगे ना फर्स्ट इक्वेशन में, सो ये आपका -6 बीटा हो जाएगा। क्लियर। एंड इक्वेशन 2 में आप जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका +6 बीटा हो जाएगा। तो यहाँ -6 बीटा, यहाँ +6 बीटा। सो आफ्टर दैट इफ यू विल ऐड बोथ दिस इक्वेशंस, देन वहां से बीटा फिर कैंसिल होगा, अल्फा सिर्फ बचेगा और अल्फा का वैल्यू आप निकाल सकते हो। और अल्फा का वैल्यू आपने निकाल लिया, देन यू विल यूज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड यू विल पुट इन any of these equation, that is either in equation 1 or either in equation 2, and from there you will find out the value of beta. Clear? So equation 1 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, we will multiply 3. So we will write that multiplying equation 1 with 3, multiplying equation 1 with 3 and equation 2 with 2. ओके इक्वेशन 2 में हम लोग 2 मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्लियर। सो इक्वेशन 1 में हम जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा इज इक्वल टू 8 इंटू 3 दैट इज 24। एंड इक्वेशन 2 में हम जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 अल्फा प्लस 6 बीटा, okay, and 14 into 2 that is 28. So now what you will do, now we will write here that adding the two equations. So adding the two equations, adding the two equations, adding the two equations. So Ayush, you are given the answer. Okay, okay. So I am solving. Okay, मैं solve कर रहा हूँ इसे. Adding the two equations. Clear? So if you will add both these equations, then -6 beta and +6 beta तो आपका कैंसिल होगा। क्लियर। सो 9 अल्फा प्लस 4 बीटा, सॉरी 9 अल्फा प्लस 4 अल्फा, 9 अल्फा प्लस 4 अल्फा, ये आपका बचेगा लेफ्ट में इज इक्वल टू राइट में क्या होगा 24 प्लस 28। सो 9 अल्फा प्लस 4 अल्फा दैट इज 13 अल्फा। क्लियर। सो 8 प्लस 4 आपका 12, कैरी 1, इट्स 32। क्लियर। 8 4 12, यस इट्स सॉरी इट्स 5 ना, अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक। 8 प्लस 4 आपका 12 होता है, कैरी 1, 2 प्लस 2 इज 4 एंड प्लस 1 5। क्लियर। सो अल्फा होगा आपका 52/13। सो 13 इंटू 4 इज 52 होता है। सो दिस इंप्लाई अल्फा इज इक्वल टू 4। क्लियर। सो अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, अल्फा इज इक्वल टू 4। नाउ if we will put the value of alpha in equation 1, then from that we can find out the value of beta. So 3 alpha minus 2 beta is equal to 8 होता है। क्लियर। so 3 into 4 minus 2 into beta is equal to 8. so 4 into 3 is 12। 12 इस 8 को हम लोग लेफ्ट में लेके चले जाएंगे तो 12 minus 8 होगा, और इस -2 बीटा को हम लोग राइट में लेके चलेंगे, ये 2 बीटा होगा। क्लियर। सो 12 minus 8 is 4, 4 is equal to 2 beta, so 4/2 is equal to beta. So beta is equal to what? It is 2. Clear? So alpha is equal to 4 and beta is equal to 2. Alpha is equal to 4 and beta is equal to 2. Alpha का value 4 आया and beta का value 2 आया। Clear? So now we will find out the sum of the zeros, that is alpha plus beta, that is 4 plus 2, that is 6. And we will find out alpha into beta, that is 4 into 2, that is 8. अभी मुझे याद है यहाँ प्रोडक्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में गलती किया था ना, 4 into 2 it is 8, it is totally correct. Clear? So now what you will write? So the quadratic polynomial is, so the quadratic polynomial, so the quadratic polynomial is given by, we will consider the given polynomial as f of x k into x square minus alpha plus beta into x
प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए 6 है, तो ये आपका 6x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये आपका 8 है, क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। देन यहां पे आप देखिए क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन है दैट फाइंड आउट द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन यहां पे सिंपली आपको k का वैल्यू कुछ भी कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। ये जो है ना, मैंने जो इसे अभी रिप्रेजेंट किया दैट इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, दिस इज व्हाट, दिस इज इटसेल्फ द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्लियर। दिस इज इटसेल्फ द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब यहां से आप a number of quadratic polynomials find out कर सकते हो, clear, understood। so what I will write, so the family of quadratic, the family of quadratic polynomials, so the family of quadratic polynomial is k into x square माइनस 6x प्लस 8। मतलब यहां पे हमें k को कुछ भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, यहां पे k आपको बिल्कुल रखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में ही बोला गया दैट वी हैव टू फाइंड आउट द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्लियर, अंडरस्टूड। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, so with this we end our chapter, that is polynomials, okay। so this was the last class of this chapter, so we will meet in the next class with a new chapter, that is pair of linear equation in two variables, okay। so यहां तक कोई भी डाउट हुआ है आप लोगों को, okay, आप बता दो, like in the next class we will discuss that also, in case अगर कोई भी डाउट है तो, okay, okay then bye bye everyone, good night।